أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگ؟ جی پہنچ رہی سر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ذرا دیکھیے، آپ لوگوں نے بہت بہترین 3-4 دن میں مفعول خمسہ پڑھے ہیں، اور ایک سلائیڈ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے آپ کو 4 سلائیڈ دیے ہیں آپ کے نوٹس میں، تو یہ 4 سلائیڈ پہ اگر آپ غور کریں گے تو نشاندہی کر کے دی گئی ہے، آپ دیکھیں گے ایک سلائیڈ کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلی آیت پڑھیے، رائٹ سائڈ پہ کیا لکھا ہے؟ بڑا کرو، بس پی ڈی ایف ہے، بھیج دیا میں نے، کوئی بھی ایک پڑھیے بس۔ دکھ رہا کیا آپ کو؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ذکر اللہ کثیرا۔ ہاں اب آرام سے، ذکرہ ذکرہ ذکرو یعنی کیا ہے بھائی؟ کون سا فعل ہے؟ ان سب نے ان سب ماضی کا فعل ہے، معلوم ہے، ان سب نے ذکر کیا۔ تو سوال کیجئے کیا کیا، کس کا کیا؟ اللہ کا۔ اللہ۔ تو آپ ہاں ذرا میری بات غور سے سنیے، پھر میں سوال کروں گا تو جواب دینا۔ تو یہاں پر یہ جملہ ختم ہو جا رہا ہے، ان سب نے ذکر کیا اللہ کا، جملہ ختم۔ اب اس کے اندر ایک لال میں ایک ایڈیشنل دیا ہوا ہے، تو کل ہم پڑھتے ٹائم پر دیکھے تھے کہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں ایک کوئی چیز آتی ہے، اسم آتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ایڈیشنل ہے، وہ ہوتا ہے حال۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کثیر تعداد میں ذکر کرے انہوں نے اللہ کا، کیونکہ کبھی بھی مفعول حال دیکھتے ٹائم پر آپ دیکھیں گے کہ جملہ پورا ہو جا رہا ہے، اس کے بعد میں ایک اسم آئے گا جو نکیرہ ہوگا، اور وہ نسبی حالت میں ہوگا، تو وہ حال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ آپ کو؟ جی کثیرا۔ کثیرن جو ہے یہاں پہ حال ہے، کیونکہ باقی کسی چیز سے بھی آپ جوڑیں گے تو اس کے معنی نکلتے نہیں۔ انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، اس حالت میں دیکھیں انہوں کثیر تعداد میں یعنی بڑے ہی دل لگا کر بہت لمبی تعداد میں ذکر کی، اس حال میں کیا۔ اگلا جملہ پڑھیے۔ زہادہم اللہ مرضا۔ ہاں زاہدہ نہیں، زادہم، زادہ یزیدو، زادہ یہ ایک فعل ہے، معلوم ہے، ماضی ہے، اور ہم لگا ہوا ہے۔ متصل۔ ہاں، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے ظاہر اسم ہے، پیش والا ہے، تو پیش والے اسم کو لے کے پڑھیے اللہ نے بڑھا دیا، اللہ نے بڑھا دیا۔ اللہ نے کیا بڑھا دیا بھائی؟ مرضا اللہ بیمار۔ نے ان کا بڑھا دیا اللہ نے مرض، تو وہ کس حالت میں ہے؟ بیمار حالت میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن آ رہی ہے۔ ہاں آگے پڑھیے، آمینو بما پڑھیے، آمینو بما بما انزل۔ انزلتو مصدقا لما معکم۔ مصدق کا مطلب ہے ثابت کرنا کوئی چیز کو۔ ہاں تو اب ذرا پڑھیے آمینو بما انزل، یعنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جو ایمان والے ہیں، ایمان میں جو ہے وہ انہوں نازل کی ہوئی چیز کی کیا کرتے ہیں؟ وہ ثبوت دیتے ہیں۔ کس حالت میں ہے؟ ثبوت دینے کی حالت میں ہے وہ۔
अगला जुमला पढ़िए, जाल लकुम आसा, जअल लकुमुल अर्द हाँ, अब जरा मेरी बात सुनेंगे, कोई तो भी एक मेरे बातों का जवाब देंगे, कोई एक, बाकी लोगों ने माइक बंद करेंगे, माइक बंद करें क्या? हाँ, तो पहला फेल दिख रहा क्या आपको, जाला? जी सर दिख रहा। हाँ, जाला में कोई आपको पेश वाला इसम नजर आ रहा क्या? ये जो है गायब वाहिद का सेगा है, दो तरीके से आ सकता है, इनसाइड डूअर आउटसाइड डूअर। तो इसमें इनसाइड डूअर हुआ है, उसने बनाया, लकुम ये है तुम्हारे लिए। जा मजरूर, ये हो गया मुताल्लिक़ फेल, फाइल है हुआ, माजी का फेल है जाला, मुताल्लिक़ फेल है लकुम, उनके लिए, तो उनके लिए बनाया, उसने बनाया उनके लिए। तो हमने सवाल करे क्या बनाया, किसे बनाया, ये क्या और किसे का सवाल करे तो आपको क्या मिलेगा? मफूल बिही मिलता है, मिल गया, मफूल बिही मिल गया। अल अर्ज़ा क्या हो गया? मफूल बिही है। मैं आपको फिर से पूछूंगा, कोई एक जवाब देने वाले कौन है, बताइए। पहला पढ़िए, जाला क्या है? फिर माजी है। एक आदमी जवाब देगा, बाकी नहीं देंगे, सबको एक एक आयत करने लगाऊंगा मैं। जाला का मतलब फेल है, और जाला के बाजू कोई इस्म दिख रहा क्या आपको रफा हालत में? जाहिर इस्म आउटसाइड डूअर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, तो जाला का फाइल हो गया हुआ, उसने बनाया। अब जाला को छोड़ो, अगले लफ्ज को देखो, लकुम, लाम ये जो है हर जर है, कुम जो है मुत्तसिल जमीर है जो जर्री हालत में है, तो ये हो गया हमारा मुताल्लिक़ फ़ियल। तो तीन चीज मिल गई हमको, फाइल फेल मुताल्लिक़ फेल। अब जरा मफूल ढूंढिए, मफूल ढूंढने के लिए दो सवाल करके बताओ मेरे को, फिर ये सवाल जाल उसने बनाया तुम्हारे लिए, क्या बनाया? नहीं, वो सब हाँ, तो क्या बनाया, किसे बनाया, दो चीज देखने का है। हाँ, क्या जमीन बनाया बनाया, तो जवाब क्या मिली अपने को, क्या बनाया बोले तो क्या मिला? अल अर्जा। शाबाश, ये क्या पोपो कौन कर रहा जी? तो अल अर्जा क्या है भाई? मफूल बिही है, आपको मफऊल बिही। निकालना आना है, सब ये सीखना है। जमीन को क्या बना दिया, और आगे देखो, यहां तक का जुमला बेहतरीन बन गया, उसने बनाया तुम्हारे लिए अल जमीन। अर्जा, जमीन को बनाया। ये जुमला हो गया कंप्लीट। ये जुमला खत्म होने के बाद में जो अगर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो वो इस बात की गवाही दे रहा है कि हाल का बयान हो रहा है। किस हालत में बनाया जमीन को? फर्श की हालत में। माशाल्लाह। और उसने बनाया, फिर आ रहा मफूल बिही दूसरा, हाँ, वावे अक्सी के साथ मफूल बिही दूसरा आ रहा। आसमानों को क्या बनाया? आसमान को आसमानों क्या को बनाया? छत बनाया। माशाअल्लाह। तो ये दो लाल जो दिख रहे हैं, ये दोनों भी हाल है। आसमान की हालत छत की है, जमीन की हालत बिछौने की है। फर्श। जी, अब आपको समझ में आया कैसा आप एनालिसिस करेंगे? बनाया तो क्या बनाया? क्या बनाया, क्या बनाया, किसे बनाया, मफूल बिही बनेगा। मफऊल बिही। ठीक है। अब उसके बाद में अगर जुमला मुकम्मल हो जा रहा है, कहाँ कब का इसमें जिक्र नहीं है, इसलिए मफूल फी ही नहीं आएगा यहाँ पे। मफूल बिही के बाद में दो मफूल बिही आ रहे हैं, मफूल बिही अव्वल और मफूल बिही सानी, वो दोनों जुड़ रहे हैं वावे अक्सी से। वो लाल को निकाल दो, लाल को निकाले तो क्या बनेगा? जाला लकुम अर्दा व सब व समा। तो ये दो लाल उसमें फिट करेंगे तो दो लालों को हालत में बनाया की बात आ रही है, तो वो हाल है। और दोनों भी देखो, कंफर्म करो, पहली चीज ये देखना है कि वो नस्बी है क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे नकीरा है क्या है, तो फिर वो हालिश है। बात समझ गई आपको? जी सर।
अब चलिए आपका हो गया, दूसरे कोई आ जाइए, दूसरी आयत पढ़िए। कुंतुम अभी आपने सीखे ने काना काना कानो, कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंतुम यानी तुम थे, ठीक है, पढ़िए तुम थे। जरा आयत तो थे। पढ़िए भाई, आयत तो पढ़िए, पूरी आयत तो पढ़िए। तुम क्या अम्वात तुम सब हाँ मुर्दा थे। जरा, या मैंने जितना पूछा सिर्फ उसका जवाब देंगे, आप आपका रट्टा मारा हुआ बोलेंगे नहीं। कुंतुम का मतलब तुम थे। अब जरा देखिए तो क्या आगे क्या हुआ, वाह अहयाकुम, तो उसने दी तुम्हें जिंदगी, काले लेटर पढ़िए। तो आगे आप किस हालत में थे, मौत की हालत में थे, बगैर जान की हालत में थे। ऊपर जो है आप एक रूह की हालत में थे, आपको अम्मा के पेट में डालकर हयात दी गई, ठीक है, देख समझ में आया। अमवातन क्या बनेगा, तो यहाँ पे जवाब मिल रहा क्या, क्या और किसे, नहीं, क्योंकि ये जुमला इसमिया है, तुम थे, किस हालत में थे, बेजान हालत में थे। लाइफलेस। पा का मतलब तो, हाँ अहयाकुम, तो उसने दी तुम्हें जिंदगी। तो यहाँ पर आपको अगर पूरी तरह इसका इजरा करेंगे तो बोलेंगे तुम थे मौत की यानी बेजान हालत में, खाली रूह की हालत में, उसने तुम्हें जसद यानी जिस्म दिया, माँ के पेट से निकले तो जिस्म की हालत लेके निकले तो तुम हो गए हया। समझ में आ रही बातें अभी आपको। जी जी सर। तो यहाँ पे हाल क्या है, किस हाल में पैदा किया हमको, पहले हम किस हाल में थे, मौत की हालत में थे। बेजान थे। हाँ तो उसने हमें दी हालत, मौत से अच्छा हमको बना के जिंदगी दे दी है। चलिए अगला जुमला कौन पढ़ेंगे, बीतू पढ़िए, यही बीतू मिनहा, जमीआ। मियन हाँ यही बीतू का मतलब आए वो, नीचे आए वो, नीचे आए। मिन्हा साथ उससे, मिनहा, मिनहा उससे बाहर उससे आए, बाहर आए वो, किस हालत में आए भाई वो, एक दूसरे के साथ सब में, जमीयन, सबके सब हाँ वो आए। और वहां एक सबके सब के लिए नहीं है, वो आदम और हवा के लिए है ये। दोनों आए। मिन्हा हाँ जमीआ। उतरे हम्म, मिनहा ये आ गया है जमा के सेगे के लिए हा, एक साथ में आए तो जमा, जमियन। चलिए अगला जुमला पढ़िए, कोई पढ़ेंगे, इस्तौखदा नारा इस्तौखद का मतलब क्या है, जलाना, इग्नाइट करना। चूल्हा जलाते थे पुराने जमाने में ना लकड़ी का, वैसा चालू करना जलाने को। तो उसने रोशन किया, किसको रोशन किया, क्या रोशन किया, आग। तो ये जब अब आया है तो ये हाल नहीं है, क्या और किसे का मायना रखता है, इसलिए ये मफूल भी ही है। तो अगर हमने बोले उसने जलाया आग के हालत में तो गलत हो जाएगा जुमला, क्या क्या होगा, चल रहा उसने है? उसने रोशन किया आग को, क्या किसे। अब जरा बोलो, कुल्लु मिनहा रगदन, खुला कुल्लू का मिनहा मतलब क्या, रगदन, खुला का मतलब क्या है, खुला, ये कौन सा, उन हाँ दोनों में ये कौन सा, खाना। हाँ हाँ, तुम दोनों खाओ। अकला, बफरागा अकला से बना, अकला याकुलु, अकला याकुलु है, ये खाने का सीगा है, माजी का है, और मुजारे का सीगे को बनाया गया अम्र। खाओ, मिनहा उसमें से, किस हालत में खाओ, जी भर के खाओ। रगदन। आ गया समझ में भी आपको।
تو قرآن کو آپ اس طرح سے جب ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو کیا دیکھنا ہے بھائی، بلے بلے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آمین چلو اگلا جملہ دیکھیں گے بیٹے، چلو دیکھو، رزقو، انزل من السماء دیکھو پہلی بات میری، دیکھو آپ رٹے مارنے کی کوشش مت کرو، آپ فعل پر اپنے آپ کو محدود رکھو۔ پہلے مجھے بتاؤ رزقو بولے تو کیا؟ ذرا ایک سیکنڈ سب لوگ غور کرو، رے کے اوپر پیش ہے، زال کے لیے زیر ہے، اور کیا ہے؟ دیے گئے وہ ہے۔ سب ہاں، ماضی مجھول ہے۔ آپ پہلے سنیں گے کہ ماضی مجھول ہے، یہ رزقا رزقا رزقو تھا، یہ رزقا سے رزقا رزقا رزقو، دیے گئے وہ سب رزق، اور پیسہ دیے گئے، بہت پیٹ بھر کے دیے گئے۔ پیسہ دیکھو آگے پڑھیں گے، منہا اس میں سے، منہا اس میں سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، وہ جو جنت کے پھلوں میں سے بھرپور رزق دیے گئے، ٹھیک ہے، اور کیسے دیے گئے، کس حالت میں دیا گیا ہم کو کھانا؟ بھرپور۔ اگر ہم نے صرف کالے اگر لفظوں کی، ذرا سنو یار، وہ ڈسٹرب کرتے آپ لوگ، سنتے ہی نہیں۔ انہیں دیا گیا، انہیں دیا گیا، کیا دیا گیا ان کو؟ کھانا۔ کیوں بھائی؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ کس میں سے دیا گیا؟ پھلوں میں سے دیا گیا۔ اور کس حالت میں دیا گیا؟ پلینٹی، بھرپور۔ تو یہ کیا بن گیا؟ یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا، بھی بنے گا، لہو بنے گا، مطلق بنے گا۔ مطلق ماشاء اللہ، کیسا پیسہ لے کے پیسہ میرے کو بتا تو، کیسا پیسہ لے آپ؟ اچھا، آپ میں سے کوئی بولو کیسا پیسہ لے؟ سر آپ نے بتایا تھا نا کہ مصدر کی وجہ سے پہچانے سر، جو پہلے ماضی ہوگا اسی کا اتنے لوگ مصدر آپ ہوگا۔ بات کریں گے، اتنے لوگ بات کریں گے تو پھر کیسا سنے گا؟ آپ لوگوں میں ڈسپلن پیدا کرو، ایک آدمی جواب دو۔ سر وہ مصدر ہوتا ہے نا؟ ماشاء اللہ، آپ ایسا بولیں گے کہ اس کا فعل کے 3 لیٹر رے زے قا ہے، اور وہی رے زے قا کا مصدر استعمال ہوا ہے تو مفعول مطلق ہے۔ کیا جواب آئے گا؟ جو فعل کا روٹ لیٹر فعل ہے کا وہی روٹ روٹ لیٹر لیٹر لے کر مصدر بنائے تو مفعول مطلق ہو گیا۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی سر۔ ہاں جی چلیے، ہاں ابھی ذرا اگلی آیت پڑھیں گے، واتقوا، واتقوا یوم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ ہاں اب ایک ایک چیز دم دم سے پڑھو، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، یہ ایڈوانس ورب ہے، واو خا یا ہے اس کا روٹ لیٹر۔ تقوا اختیار کرو، رہو ڈرتے ہوئے، اس کا ڈرتے ہوئے رہو، کیا ڈرتے ہوئے رہو؟ یومن، یومن آ گیا نا، ڈرتے رہو، کیا کسے؟ دل اس سے، دن سے اس دل سے ڈرتے رہو۔ لا آ رہا ہے یہاں پہ، لا آ رہا ہے، لا آ رہا ہے، اور اس کے بعد میں جو فعل آ رہا ہے یا اسم آ رہا ہے، بارہ میں تو بولو تجری، تجزی، تجزی، ماشاء اللہ بہت صحیح ہے۔ تجزی کا مطلب کیا ہے؟ جزا سے ہے کیا سر یہ؟ ہاں بدلا، ہاں، بدلہ، جزا، ماشاء اللہ، ہاں جاری بدلا، ہاں۔ لا ڈرو، تجزی کا مطلب ہے نہیں، کوئی بھی نہیں دیا جائے گا ریوارڈ، کسی بھی نہیں۔ تو یہ لائے نفی جنس ہے، یہ تو اخف کیا ہوا ہے، نہیں دیا جائے گا کوئی بھی ایک شخص، کیا نہیں دیا جائے گا؟
اس کے نفس کو دوسرے کے نفس کی جگہ پر کیا دیا جائے گا؟ شیئن، کوئی چیز نہیں دی جائے گی. کیا کسے بولے تو شیئن، اپنے اعمال کے حساب سے ہی اسے ایوارڈ دیا جائے گا. دوسرے نے کتنی قرآن بخشے، دوسروں نے کیا کیا کرے، اس پر سے کوئی نہیں دیا جائے گا، اس کے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ بدلہ. اس کے نفس کو بدلہ چیز کا، شیئن بولے تو کوئی چیز کا. تو پورا جملہ ہو جائے گا کہ تم ڈرتے رہو اس دن سے جب کسی کو نہیں دیا جائے گا کوئی بھی، اس کے بجائے کسی کے کرے ہوئے کام کے بجائے، کوئی نفس نے کیا ہوا اچھا اعمال اس کے بجائے تم کو نہیں دیا جائے گا. وہ کرسچن میں ہوتا ہے، کرسچن لوگ بولتے ہیں ایسا، لیکن مسلمان بولتا ہے کہ آپ کو وہ جس دن میزان لگائی جائے گی اس دن کیا بولتے ہیں اپن؟ کوئی چیز نہیں دیا. ہاں مثقال ذرۃ شرًا یرا، یہ ہے کوئی بھی ذرہ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی دوسرے کا نہیں ملے گا. تمہارا کرا ہوئے اعمال لکھائے جائیں گے تمہارے. چلیے آگے پڑھیے. فجعلناها نکالا، ہاں بیٹے بڑھو. فجعلنا، با کا مطلب ہے تو، پس پس چھوڑ دو، پس وغیرہ اردو میں. اچھا بیٹے میرے کو بتا، تو پچھلے 20 سال میں کبھی اردو بولتے ہیں پس بولی کیا؟ نہیں بولے سر، کوئی یہ پس کس کیا لگاتے؟ تو ہے وہ تو، سو. جو زبان جی ہم سر. استعمال کر رہے ہیں نا اس کو عمل میں لاؤ. ہاں جا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بنایا، جی ہم نے بنایا اسے. اب آپ نے عبرت. پورا جملہ بن گیا، جملہ بن گیا. اس میں کیا ہے؟ نحنو ہے اور جعلہ صیغہ ہے، ہم نے بنایا. مفعول کیا گیا؟ ہاں، کسے بنایا؟ اسے. اب ایکسٹرا فٹنگ میں واحد نکیرہ اسم آ رہا ہے اور نصبی حالت میں آ رہا ہے تو حال ہے وہ. ہم نے بنایا، تو ہم نے بنایا اسے ایک سبق، لیسن، تمہارے لیے نصیحت بنائی. اب سمجھ میں آیا؟ عبرت. عبرت، نصیحت، ایک سبق. چلو ٹھیک. اب اگلا کون پڑھیں گے؟ بولو. ادخل الباب سجدا. تو یہ ادخلو ہے کہ ادخلو ہے؟ ادخل ہاں، ادخلو یہ ماضی ہے، مضارع ہے، معلوم ہے، مجہول ہے، یا امر ہے؟ امر ہے سر. امر ہے. انٹر ہو جاؤ. کہاں انٹر ہو جاؤ؟ البابا، دروازے سے. داخل ہو جاؤ دروازے سے. باب کا مطلب دروازہ. اب دیکھیے اس کے بعد آ رہا ہے واحد نکیرہ اسم جو نصبی حالت میں ہے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، جھک کر. داخل ہو جاؤ اس دروازے سے جھک کر. یہ کہا گیا تھا اسرائیلی یہودیوں کو. یہ حال چلیے آگے پڑھیے. حال ہے بیٹے، حال ہے. اشتروا به ثمنا قليلا. قلیل. اب یہ لام زیر لیتے آ رہا ہے تو یہ بھی آ رہا ہے تو. خریدو، خرید لو، یعنی کہ خرید کر اس سے ریٹرن لے لو ایک چھوٹی سی قیمت. خرید اور فروخت کو بولتے ہیں یشترا، شترا. تو ایک ویاپار کر لو بھی اس میں سے کمنن خلیلن، تھوڑے سے پیسوں کے لیے. تو تم وہ کیا کرتے ہیں؟ خرید لیتے ہیں، برائیاں نیکیاں دے دیتے ہیں اور برائیاں ہاں خرید لیتے ہیں. برائیاں خرید لیتے ہیں. کس حالت میں ہے وہ لوگ؟ تو دیکھو اگر ہم نے دیکھیں گے پورا جملہ کہ وہ
खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, क्या देते हैं? नेकियां। और क्या पाते हैं? समनन खलीलन, ये क्या है? कम कीमत थोड़ी में। सी अरे इसका इसका ग्रामर बोलिए, ग्रामर बोलिए। अच्छा, मकबूल समनन क्या हो गया? ये हो गया मफूल बिही, मौसूफ। मौसूफ, खलीलन क्या हो गया? सिफत, सिफत सिफत हो हो गया। गई। तो हम पूछेंगे वो क्या हासिल कर लेते, क्या मिलता उनको? छोटा सा माल मिलता है, तो ईमान बेच देते हैं और बेईमानी खरीद लेते हैं। लोग आप बोलते हैं ना, थोड़ा सा ब्याज लिए तो क्या होता, यही सोचता हूँ। मर्रा अला, पढ़िए पढ़िए मर्रा जल्दी अला, कीजिए। मर्रा अला करियतिन वहिय खावियतुन अला हाँ। उरुशिहा। अच्छा, इसमें से क्या क्या चीज जानते हैं आप? मर्रा, मर्रा यानी गुजरा, वो गुजरा। वो गुजरा। अच्छा, खरिया का मतलब क्या है? गांव में से, गाँव बस्ती में, शाबाश। अला का मतलब पर। पर, तो यहाँ पे उसका मतलब निकालेंगे उर्दू में, वो गुजरा एक बस्ती में से। बस्ती में हाँ, से। हाँ, वही और आगे क्या? खावियतुन, वाहिया। वो हाँ, ये तो हो गया हमें। तो क्या हो खावियतुन, रहा था वहां पे? किस हालत में थी बस्ती? वो उलट रही थी। अच्छा, हाँ, अला उरुशिहा, यानी अपने को उसका जो छता थे वो उल्टे हो रहे थे, छत नीचे जमीन ऊपर हो रही थी। इस हाल में पहुंचे, वो बस्ती में गुजरे तो क्या पाया उन्होंने? अच्छा, बस्तियां उलट छत, चुकी हाँ, थी, वही उलट हो पुलट, चुकी बस्ती उलट पुलट हो चुकी थी, हो रही थी, हो चुकी थी। थी। चलिए आगे का जुमला पढ़िए। वअंज़लना, फअंज़लना इसके मायने अलल बोलिए। लज़ीना मैं ज़लमू, आगे मत जाओ, आगे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज को। फअंज़लना, तो हमने नाजिल किया अलल माशाअल्लाह। लज़ीना, उन लोगों पर। अलल लजीना, ये तो अपना मौसूल आ गया, अलल लजीना। जिन्होंने गुमराही इख्तियार की, वो उन पर जिन्होंने गुमराही इख्तियार की। तो रिजजन, रिजजन का मतलब क्या है? तबाही। किस हालत में हुआ आपको? हमने नाजिल किया, जुल्म करने वाले वो जो थे उन पर तबाही। किधर से? मिनस आसमान से। समाई, ये हो गया अपना निकालने के फेर। ठीक है, तो ये अब आपको आगे, जी जी बेटा, आगे जो है तुमको ये घर में बैठ के करना है, नोट्स बनाना है। और जो भी तफसीर आप पढ़ते हैं उसको देखो, चेक करो, और आप माने निकालने का एक अच्छा अंदाज बनेगा। तफसीर रखो आपके साथ में, या लफ्जी माने जो भी आप जिसको फॉलो करते हैं वो देखो, और उसके साथ साथ फिर इसको देखो तो आपको माने आप निकाल रहे और तफसीर में जो माने हैं, ये लफ्जी माने जो है वो मैच हो रहे क्या, देख लो आप। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एहतमाद बढ़ेगा और आपको माने निकालने की आदत हो जाएगी। तो मफाइल हमसा आपके हाथ में आ जाएंगे पूरे। तो मैंने ऐसे 3 चार्ट और दिया है, कुल मिला के ये 4 चार्ट है जिसमें तमाम चीजें आपको मिलेंगी। आपका ये रिकॉर्ड है प्रैक्टिस करने का। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर, स्क्रीनशॉट ले रहे सर। क्यों, मैंने भेजा नहीं क्या आपको? दिया है अच्छा वही है, हाँ सर। अरे भाई कैसा जी, आप कौन से होस्ट में हैं आप लोग? कल मैंने वादा करा रहा हूँ। जी सर देखे वादा, हम, नहीं सर कल का देखे हम, अभी नहीं स्क्रॉल हो रहे हैं तो समझ में नहीं आया सर अभी। ये स्क्रॉल टू 280 की तरह, 75 80 कहीं तो भी देखो मिल जाएगा आपको, 280 275। जी सर इंशाल्लाह। चलिए, तो आज का सबक मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज का सबक भी बड़ा अहम है, यहाँ से सब अहम सबक शुरू होने वाले हैं जो आपके इल्म में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। देखिए भाई, जरा मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ इसको। माजी, मुजारे, मुस्तकबिल के माने अक्स करना है। माजी, मुजारे, मुस्तकबिल फेल के माने अक्स करना है। तो जो जुमले में माजी आए, मुजारे आए, मुस्तकबिल आए, ये आने से पहले कुछ हर्फ का इजाफा होगा, वो हर्फ की वजह से माने बदलकर माजी होकर मुजारे बन सकता है या मुस्तकबिल बन सकता है। पहला एग्जाम, ये तो इंडेक्स है, बड़े डिटेल आपको 2-3 दिन में ये पढ़ाया जाएगा, तो परेशान मत हो। खाली ये इंडेक्स है, प्रेल्यूड है, प्रस्तावना है, या आप बोलेंगे इसका सिर्फ जो है ना इनिशियल। तो इफ एंड इजा और इज यूज्ड बिफोर अ पास्ट टेंस, अगर माजी के जुमले के पहले इज आ जाए या इजा आ जाए, तो क्या आप जानते हैं इज कब आता है और इजा कब आता है? अगर आप जानते हैं तो थोड़ी रोशनी डालिए, वरना मैं तो बताऊंगा ही इंशाअल्लाह। दोनों के मायने क्या होते हैं? जब 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 और होता है इजा सर, के वेल। मायने भी जब है, इसके मायने भी जब है। दोनों में फर्क क्या है? एक कंडीशनल है सर, जी, इजा कंडीशनल है। और दूसरा एडवर्बियल। इस जो है एडवर्बियल है और इजा कंडीशनल है। अब इसका मतलब है जुमला बनेगा इसका, याद करो। क्या आएगा? याद करो, जब भी जुमले हाँ, में रिमाइंडर की तरह। जब भी जुमले के शुरू में इस दाखिल होता है तो आप उसका तर्जमा करेंगे, याद करो इस खाला रब्बुका। इस खाला के बाद आ रहा है, तो याद करो अल्लाह ने कहा मलाइका से। तो वहां पे हमेशा आपको मायने बनाना है, जुमला याद करो, एक टाइप का ये हुक्म ही हो जाएगा, याद करो। और ईजा का मतलब है जब। अब ईजा में दो चीजें होते हैं, अगर आखिरत की बात चल रही है तो मुजारे हो जाए, और अगर जिंदगी की बात चल रही है, आखिरत की बात चल रही है तो मुस्तकबिल होगा, जिंदगी की बात चल रही है तो मुजारे हो जाएगा। ये जो जुमला लिखा है कोई पढ़ के सुनाइए। हाँ, अब मुझे हाँ इतना ही पढ़िए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। तो इसके मायने क्या निकालेंगे? आएगी अल्लाह अल्लाह की मदद एक और सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। इज़ा के बाद में माजी आ रहा है। जा का मतलब आया, आया। वो आया। जब आई अल्लाह की मदद और फतह। हाँ, और कोई बताएंगे कोई मायने? जब आ जाए अल्लाह की मदद और कोई बताएंगे? ये माजी से पहले आ रहा है तो आएगी अल्लाह की मदद। दो चीजों को याद रखो। ईजा आने से आ जाएगी होगा सर, ईजा आने से। अभी मैं बोलूं क्या कुछ? इसके दो मायने लिख के रखो कि एक ये आखिरत की बात हो रही, क्या ये आखिरत की बात है क्या इसमें? नहीं सर, दुनिया की है। फिर आ जाएगी बिल्कुल नहीं होगा, जिसने आ जाएगी बोला वो फेंक रहे। जब आई अल्लाह बाकी की है। मदद और हाँ, अब जरा एक मिनट उनको मैंने बात कंप्लीट कर लेने दो।
आखिरत की बात है, अगर होती है तो आ जाएगी बनता था, लेकिन ये आखिरत की बात नहीं है, दुनियादारी की बात है। हम अगर इंतजार कर रहे हैं 3 साल से बारिश नहीं हो रही और बारिश हो जाए, तो इसके मायने निकालेंगे जब आ जाए। वो बच्ची सही बोली, जब आ जाए अल्लाह की मदद, जब आ जाए, आई नहीं, आई नहीं, आती नहीं, आ जाए। कंडीशनल When it सेंटेंस है, when the help comes। तो when जब it आप happens. तो जब आप पढ़ने का तो वहां पे नोट लगा दीजिए आप, एक फोटो लेकर इसको। खैर आगे बहुत आने वाला है, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे आपके पास। अगर आपने प्रिंट आउट लेकर आए तो लिख सकते हो उस पे कि जब भी इजा आएगा उसके बाद माजी आता है, लेकिन उसके माने आखिरत की बात हो रही तो मुस्तकबिल होगा, और दुनियादारी की बात हो रही तो मुजारे होगा। तो ये मुजारे में है। किसी भी शख्स ने बहुत बेताबी से कोई चीज पाने की कोशिश कर रहा है, तड़प रहा है, बड़े ही सब्र के साथ, सब्र सलात और सब्र के साथ अल्लाह से मांग रहा है, और जब मिल जाए तो ये बोलेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद। हाँ, तो आगे क्या है, वदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजन। तो यानी कि आपको आगे के जुमले को जोड़ लेंगे, और अल्लाह बहुत बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो आप किस हालत में रहेंगे, आप इस हालत में रहेंगे कि आप अल्लाह का इस्तग़फ़ार, अल्लाह की तारीफ, इस्तग़फ़ार, माफी मांगते रहेंगे। अल्लाह बहुत माफ करना है। ऐसा ये सूरा है। समझ में आया? इंग्लिश में देखो, व्हेन द विक्ट्री ऑफ अल्लाह हैज कम, जब आपके पास आ चुकी है या आ जाए क्या, अल्लाह की मदद, और आप पा जाओ जीत। ठीक है, हाँ, अब याद रहेगा आपको भी। जी चलिए अब मैं दूसरी बात पर रोशनी डाल रहा हूं। हम पढ़ेंगे काना। क्या पढ़ेंगे भाई? खाना। काना पढ़ेंगे। जरा काना को 1 सेकंड के लिए बाजू रख दीजिए। तीसरी चीज पे आ रहा है, अगर माजी है, कौन सा है बोलो, फिल्म कौन सा है? माजी, पहले माजी। और माजी के सामने खद दाखिल हो जाए, क्या दाखिल हो गया? खद। खद दाखिल हो गया, तो हम इसका तर्जुमा 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है हो चुका है, यकीनन बोलने की जरूरत नहीं, काम हो चुका है। पहला क्या है? काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं माजी करीब। कोई काम हो चुका है ऐसा बोलेंगे। दूसरा है, अगर इसमें ताकीद पैदा करना है तो यकीनन हुआ, यकीनन ऐसा हुआ। हो गया बोलना बेटर, हुआ बोलने की वजह हो गया। तो खद के 2 माने आएंगे आपको माजी के साथ में, यकीनन हुआ। अल्लाह ताला इंसान को पैदा कर चुके हैं बड़े ही परेशानी में। लक़द खलक़ल इंसाना, देखो कैसा है, अल्लाह ताला ने बना दिया है या बना चुके हैं इंसान को बड़े ही अच्छे तरीके से। तो आपको इसके बड़े डिटेल मिलने वाले हैं। तो नंबर 3 समझे, इसलिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को मालूम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कल मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा मुझे कोई बता सकते प्रेजेंट परफेक्ट कब इस्तेमाल करते हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे को 2 बातों का जवाब दो। मैं खाया दोपहर में और मैं खा चुका हूं, ये दोनों के मायने बताओ मुझे। आई एट इन द आफ्टरनून, आई हैव ईटन, ये दोनों का फर्क बताओ। Sir, I ate is present perfect or I have eaten is passive, na past passive. आई एट सिंपल पास्ट टेंस है। आई एट इन द आफ्टरनून का मतलब है काम खत्म हो गया, माजी मुतलक है वो। तुम भूल जाओ, मैं भूल जाता, सारी दुनिया खाती, मैंने कौन सा बड़ा काम करा खाया तो। लेकिन आई हैव ईटन का मतलब है 3 चीजों का उसका रिजल्ट आएगा। द वर्क इज कंप्लीटेड, satisfaction is achieved, and I have got what I wanted. अगर आप
अगर आपका एसएससी पास करके 10 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, तो क्या आपने कॉपियां मार के पास हुए या पढ़ के पास हुए? पढ़ के पढ़ हुए के पास। सर। लड़के हैं सर। तो पढ़ के हुए तो आप बोलेंगे आई हैव पास्ड, मैं हूं पास हो चुका। इसमें से 3 चीजें निकलेंगी, काम का खात्मा हो गया, मुझे उसका सेटिस्फेक्शन हो गया, और मुझे हासिल हो गया, क्योंकि आपके पास पास होने का कागज है, समझे? और ऐसे ही कापियां मार के पास हुए तो आप बोलो आई पास। सिंपल पास्ट टेंस, इसका नाम सिंपल इसलिए रखा गया है कि सादा जिक्र करना भूल जाने के लिए है वो, और प्रेजेंट परफेक्ट का इस उसको ख्याल में रखने के लिए है। तो खत जब लगाएंगे आप तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, उसको माजी करीब बोलते हैं। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, काम खत्म हो गया, 10 साल होने के बावजूद तुमको आज लग रहा है कि मैं पास हो चुकी हूँ, अभी अभी लगता आपको। खैर कल देखेंगे इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? माजी करीब, बोलो। माजी करीब। करीब। यानी कि कोई काम खत्म हुआ और मुझे उसका नजदीकी उसके एहसास होता है कि अभी अभी हुआ मेरे साथ। और सिंपल पास्ट टेंस जो है बीता हुआ लंबा काम हो जाता है, चलेगा पीछे हो। चलिए, तो आपको समझ में आ गया माजी करीब बनाने का तरीका। माजी को कद जोड़ेंगे। अब बोलो, कद खलकनल इंसाना, खलकना हमने पैदा किया, बोलेंगे कि हमने पैदा कर चुके हैं इंसान को। पैदा किया। पैदा किया तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, फालतू काम था भूल जाओ। कर चुके इंसान। हाँ, और दूसरा तरीका है यकीनन डालेंगे तो हमने पैदा किया इंसान। लखत लखत हाँ लखत। लखत लगाते ही वो यकीनन आ गया और पैदा कर चुके हैं बन गया, ताकत डबल बूस्टर आ गया। वो लाम को क्या नाम दिए थे, कुछ याद है क्या आपको? लामे इब्तिदाई है। इब्तिदाई। हाँ, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लामे ताकीद है, पैदा कर रहा ताकीद, लेकिन शुरू में आया इसलिए इब्तिदाई है वो। और जब उसके साथ इन्ना आ जाता है तो लाम तैरते हुए पीछे चले जाता है। जुमला इस्मिया में हम पढ़े थे इन्ना के साथ में, इन्नल इंसान लफी खुस्र, याद आया? तो उसको लामे मुज़ाहलका कहते हैं, पढ़ा है ना मैंने आपको, बहुत पढ़ा है वो। खैर अभी वापस पढ़ेंगे वो। तो अब आ जाइए 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है काना। माजी को अगर काना जोड़ते हैं आप तो दूर का माजी हो जाएगा, इसको बोलते हैं माजी बई। आपको मैंने कहा कल दावत में आप हाजिर तो थे लेकिन खाना नहीं खाए, तो आपने बोले हाँ सर आपकी बात बराबर है, मैं दावत में आने से पहले खा चुका था इसलिए नहीं खाया, खा चुका था। आया समझ में? गाना बोलते ही वैसा हो चुका था आ जाता है, ये परफेक्ट पास्ट टेंस है ये। अब देखिए भाई, आपको ग्रामर की कितनी पकड़ है मैं नहीं जानता, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भी ग्रामर नहीं पढ़े। बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश बोलते लेकिन ग्रामर नहीं आता। तो ये परफेक्ट पास्ट टेंस 2 चीजों को जुड़ा के बोला जाता है। जब मैं स्टेशन पर गया गाड़ी में बैठने के लिए तो क्या पाया, ट्रेन थी जा चुकी। ये थी हो चुकी वाला जो काम है दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, इसलिए ये आया है। इसको कहते हैं माजी बईद। माजी करीब और माजी बईद दोनों भी कुरान में कसीर तादाद में आया है। और फिर हम जो है रट्टा मार के पढ़ेंगे तो समझता नहीं है क्या हो रहा है। अब देखिए, मर्द हजरात को मालूम होगा कि जब हमारी सलात होती है और उससे पहले अजान होती है तो ऊला यानी पहला और सेकंड टाइम जब हम सफ में खड़े रहते हैं तो मुक्तदी पुकारते हैं खद खामत असला, खद खामत सला, खद खामत सला, यानी के सब खड़ी हो चुकी है। खद आती आ गया ना, जल्दी आओ नमाज के लिए सब खड़ी हो चुकी है।
अब आया समझ में आपको? इकामत बोलते हैं उसको, इकामत पुकारेंगे तो क्या पुकारेंगे? कद कामत इस्सला। मतलब क्या है? कद का मतलब, कामत का मतलब यकीनन। कामा यकीमो, कायम हो चुका है कोई चीज। तो यहाँ कैसा पढ़ेंगे? क्या बोलेंगे? द प्रेयर हैज कमेंस्ड। लोग खड़े हो चुके हैं, बस अब शुरू होने में है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे। तो 3 चीजें मैंने अभी आपसे बताया कि माजी के जुमले से पहले इज या इजा दाखिल होता है। नंबर 2, माजी के जुमले से पहले काना आता है तो कर चुका था, और माजी के जुमले से पहले कद आ जाता है तो कर चुका है। कर चुका है, जी कर मैडम। चुका। और अगर आपने फेल मुजारे लिया और उसके सामने आपने काना लगा दिया, बोलो, फेल मुजारे लिया और उसके सामने, अब जब का माजी था सब, ये चौथा फेल मुजारे है, फेल मुजारे के सामने काना लगा दिया तो मायने होंगे वो करता था या वो किया करता था। ये एक मैं इससे फिर मिसाल देता हूं। आप अपने स्कूल के जमाने का जमाना याद करो और बोलो, मैं जाया करता स्कूल को साइकिल से या बस से, जो अब मैं नहीं करता। या सादी जुबान जिसको नहीं आती अच्छी उर्दू बोलेंगे, मैं जाता था। अच्छी जुबान वाला बोलता मैं जाया करता। अब ये बच्ची जो बात कर रही है वो बोलेगी, मैं गुड़ियों से खेला करती जब मैं छोटी नन्ही मुन्नी थी। आप खेलती क्या गुड़ियों से? तो इस जुमले को बोलते हैं माजी इस्तेमरारी। ये कुरान में ऐसा आएगा कि वो मुशरिक मक्का वो अल्लाह के फरिश्तों को बेटियां बनाकर उनके जरिए वसीले चढ़ाया करते थे। क्या करते थे उन्होंने? बोलो, ट्रेडिशनली क्या करते थे? अल्लाह से कोई चीज डायरेक्ट नहीं मांगते थे। लात उज्जा अलग अलग किस्म के बुतों के उन्होंने नाम रख लिए थे और कहते थे वो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो उसके जरिए से उसकी सिला लगा के मांगेंगे हम। तो कुरान कहता है वो ऐसा किया करते, वो झूठ बोला करते, वो झूठ घड़ा करते, वो अल्लाह की निशानियों का इनकार किया करते। इस तरह से ये भी जुमला बहुत आता है। पढ़िए, नीचे का आयत लिखिए। कालू अय्याना मा कुंतुम तदउना मिन दुनिल्लाहि। वो कहेंगे, कहाँ है वो लोग जो वो बुतों को, उस्सा और लात को पूछा करते थे, उनसे मांगा करते थे, वसीले लगाया करते थे। तो वसीले लगाना कुरान ने बोला गलत है। चलिए, तो यहाँ पे माजी का सीगा है या मुजारे का है भाई? मुजारे का सीगा है। सर ऊपर तो काना नहीं, हाँ बेटे, ये जो कालू अय्यना मा कुंतुम, इसमें काना तो है नहीं ना। काना का मतलब क्या है बेटा? काना का मतलब हाँ थे। थे। और कुंतुम का मतलब है या होंगे, है या तुम होंगे। थे। काना या कोनो, इस तरह से उसका जुमले के माने निकाला जाएगा। जी 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 तुम थे, अच्छा है जमा। जी जी सर, समझ गए। सब समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े मजेदार चीज है और बड़ा मजा आएगा आपको। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आज आपको इशारतन बता देता हूँ। ये पढ़िए, माजी के अक़साम। माजी की 4 किस्में हैं। पहले किस्म क्या है? पढ़िए, माजी करीब, अल-माज़ी माजी करीब, बड़ी,
الماضی माजी इस्तेमरारी और माजी शक की। शक यानी हम बोलते हैं ना शायद ऐसा हो जाएगा, मुमकिन है ऐसा हो जाएगा, हुआ तो होगा, शायद ऐसा हुआ। तो ये चार चीजें इंसान, हजरत इंसान ये चार जुमले बोलते हैं, इसलिए चारों जुमले कुरान में बड़ी कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। क्या क्या बोलो, याद कर लो इसको। माजी करीब, माजी करीब, माजी बाई, बड़ी और माजी इस्तेमरारी, हाँ, और बाद में माजी माजी शक्की। शक तो आज मैंने उसके ऊपर से पर्दा उठाया, एक एक जुमला पढ़ के देखो तो आपको समझ में आएगा। अब पहला इधर राइट हैंड से पढ़ो, ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी। ज़हबा का मतलब क्या है? गया। अब यहाँ पे अपने पास में इसमें जाहिर दिख रहा, ज़ैद गया, इस तरफ गया, मार्केट बाजार के की तरफ गया। अब इसको कद लगा दे तो क्या होता है? देखो सेम जुमला उठाओ, उसको कद लगा दो। कद ज़हबा ज़ैदुन, कोई अमल करा क्या उन्हें? कुछ से नहीं करा, कोई अमल नहीं करता, इसके अंदर आमिल नहीं है इन्हें। कद ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, तो मायने होंगे ज़ैद जा चुका है मार्केट के तरफ, यानी ज़ैद अब यहाँ नहीं है, ज़ैद का आता पता ठिकाना यहाँ नहीं है, ज़ैद जा चुका है। अब खद के साथ मां लगा देंगे तो होगा नहीं है जा चुका। तो बोलिए, मा ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी। मां माजी के लिए मां आता है, ज़ैद नहीं गया मार्केट के जानिब। अब खद मा ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, खद ज़ैद नहीं है जा चुका मार्केट के तरफ। ताकीद है क्या सूरज? कहाँ है ताकीद? क्या नजर आई तुमको? ताकीद ना बाकी कुछ भी नहीं है, जा चुका है नहीं है जा चुका। ताकीद वाला जुमला है ना, जब मैं बताऊंगा, हर एक को ताकीद नहीं लगाते। अब इसके मायने को बदलेंगे हम, हमजतुल इस्तिफाम लगाएंगे राइट साइड में। देखो, ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, क्या क्या ज़ैद गया मार्केट की तरफ? गया? डिड ही गो? डिड ही गो? और यहाँ देखो, आखिर ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, हैज़ ज़ैद गॉन टू द मार्केट? है क्या ज़ैद जा चुका मार्केट? है क्या जा चुका? और उधर गया क्या? दोनों में बहुत फर्क है, एक सादा माजी मुतलक है और एक है माजी करीब। अब नेगेटिव बना दो, मा ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, नहीं गया क्या ज़ैद? दिन ही गो, दिन ही गो। अब यहाँ देखो, आखिर मा ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी, हैज़न्ट ही गॉन टू द मार्केट? नहीं है कि जा चुका हो। ये जुबान है, ये जुबान है, जुबान को सही इस्तेमाल करना सीख। अब नीचे आ जाओ, खत लगाएंगे हम लोग ज़हबा के साथ में, और उसको मुख्तलिफ संगत में। तो यहाँ पे आपको पूरे, आपको जो जुबान समझ में आती है उसके अंदर लिखा हुआ है। आपको कल से इसको डिटेल में चलेंगे हम और मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे। और भी ज्यादा ताकत पैदा करना है खत के साथ, क्या कहेंगे? लखत। क्या ज़ैद यकीनन जा चुका है, तो लखत लगाए तो यकीन आ जाएगा। अब आ जाएगा उसके अंदर, हमने ताकीद पैदा कर दिए। और अगर उससे ज्यादा बड़ा है तो वल्लाही लगा दो, कसम है अल्लाह की, ज़ैद जा चुका है, ज़ैद जा चुका है। अल्लाह की कसम ना, तो वल्लाही, ये वावे खस्मिया है। वत्तीन वज़ैतून वत्तूर सीनीन वहाज़ल वलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आगे देखो, ये पूरा सब के सब यही चीजें आने वाली सूरों में। तो अब हम बनने तैयार होने लगे। मुबारक आपको कि कंप्लीट सूरों के अंदर जाके तकरीबन सब चीज का ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, और आपको पूरे सूरे को आराम से उसकी तशरीह कर सकते हैं आप। एक मिनट है मेरे पास, कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्यों कसम खाई जा रही? तीन क्या है भाई? तीन, तीन किस चीज का नाम? अंजीर, अंजीर, अंजीर। अंजीर कहाँ पैदा होता है?
ज्यादा सूर्य नाम अच्छा पुरशील का यरूशलेम यरूशलेम के पास। और यरूशलेम किसका मुकाम है? का ये बनी हुसैन नबी का मुकाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे नहीं माशाअल्लाह। अलैहिस्सलाम और पूरे सीनी का है। अब दूसरी कसम कही जा रही सूर यानी के वो पहाड़ पहाड़ सीना का साइनाई का पहाड़, ये किसकी निशानी है? ये मूसा हजरत मूसा 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 अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। अगला देखो वहाजल बलदिल अमीन, ये कौन है भाई? अमानत का शहर कौन सा है? मक्का है ये मक्का है, मक्का है। ये असल में चीजों की कसम नहीं खाई जा रही है, ये तस्वीर है, एक है कसम खाई जा रही है। अरे रुक, एक कसम खाई जा रही है हजरत इब्राहिम की, दूसरी कसम खाई जा रही है हजरत मूसा की, तीसरी कसम खाई जा रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बोला जा रहा है यकीनन हम बना चुके हैं इंसान को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वो साला नीचे गिर जाता है, नाली का कीड़ा बन जाता है, अस्फल साफिलीन हो जाता है। अब समझ में आने लगी? तो ये हम लोग बाय वर्ड अगर मीनिंग निकालेंगे तो बोलेंगे यार ये अंजीर के कसम का खा रहे होंगे, ये पहाड़ के कसम का खा रहे, ये शहर के कसम। तो इसको बोलते हैं तदब्बुरुल कुरान। आप तदब्बुर करो यानी कि आप सोचो समझो, दिल पे चस्पा करो, तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपको याद हो जाएगा। हिस्स करेंगे इसके बाद तो मजा ही मजा है। बात समझ में आने लगी आपको? जी शुक्रिया सर, बहुत सब जज़ाकल्लाह खैर सर। अल्लाह ताला को जज़ा खैर दे। बहुत अलग अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया। अभी तक तो मतलब जो प्रैक्टिकल वर्ड टू वर्ड था वही समझ रहे थे हम। नहीं बेटे, वो जो था वो भी अच्छा था, वो भी बुरा समझा। नहीं था, लेकिन अब आपको अपने दिल पे उसको रिफ्लेक्ट करना आना। कुरान का मतलब है तदब्बुर, तफक्कुर, ये तमाम चीजें करो, अपने दिल पे लगाओ, और ये पढ़ने के बाद आधा घंटा खामोश एक जगह जाके बैठो और सोचो अल्लाह ताला मुझे क्या बता रहे हैं, मैं क्या करना चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। या तो सो जाइए। नहीं समझ पा रहे थे तो अभी झूमते झामते और जाके नींद खत्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा? जी सर। जी जी सर। पढ़िए, ये कुरान की एक आयत है, उसका एक हिस्सा है। قال قابل أو بعض يوم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قवला قابल मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअज़ यौम। ये एक आयत का हिस्सा है जिसमें हम हर एक लफ्ज को अलग अलग करके सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर फेल कितने हैं और इस्म कितने हैं। तो इसके अंदर से हमको फेल ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले फेल कौन से है इसके अंदर? लबिस्तुम खालू लबिस्तुम क़ालू لبثنا लबिसना। लबिस्ना। बस सर इतने चाहिए। इतने ही फेल है। कितने फेल है? क़वला एक फेल है, लबिस्तुम दूसरा फेल है, क़ालू फिर तीसरा फेल है, लबिस्ना और ये चौथा फेल है। तो फेल को अगर हम देखेंगे तो क़वला है और फिर क़ालू है, तो ये दोनों भी फेल सेम है, तो दो फेल हो गए। लबिस्तुम और ये लबिस्ना, ये दोनों भी सेम है। अब सबसे पहला है क़वला। क़वला फेल हमने पहचान लिए। उसके बाद देखना है कि इसके अंदर से इस्म कौन से हैं। आविलुन, يوم यौमन यौमन, यौमिन منهم يوم यौमिन بعض और हुम इसके में अंदर सर इसका इसमें है मिन हुम में हुम। हुम। मीन के बाद आता है हुम। और बाज भी है। बाज ज़र्फ है सर। ज़र्फ है ना, ये फिर अखफ करे हुआ इसमें रहता ना। हाँ अखफ किया हुआ है। इसके ऊपर तनवीन भी आती बाज मर्तबा और तनवीन नहीं भी आती, तो ये भी एक इस्म है लेकिन ज़र्फ की तरह काम करता है बाज। चलिए, फेल हो गया, इस्म हो गया। अब इसके बाद पहचानना है हर्फ। मीन है। मिन मीन एक किस्म है। मिन है सर। एक इस्म है أو और أو आओ नहीं। और ये कम भी असल में एक इस्म है, इसको बोलते हैं इसमें इस्तिफाम। एक कितना रहता अच्छा। हरफ इस्तिफाम और एक रहता इसमें इस्तिफाम। हरफ इस्तिफाम तीन है, हमजा जबर आ, मीम अलिफ जबर मा और हल। ये तीन हरफ इस्तिफाम है और इनके अलावा जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसमें इस्तिफाम, जैसा कि कैफा, मता, आईना, कम, ये तमाम के तमाम इसमें इस्तिफाम। तो इस्म फेल हर्फ हमने पहचान लिए। अब फेल की तरफ हम वापस चलेंगे तो सबसे पहला फेल है क़वला। अब क़वला फेल हमको पहचानना है कि माजी है या मुजारे है या अम्र है कि नाहिया है। माजी है। गायब वाहिद माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है। और उसके बाद ये मालूम है कि मजहूल है? मालूम मालूम है। मालूम है। और फिर ये पहचानना है कि ये सुलासी मुजर्रद है या फिर सुलासी मजीद की है। सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद यानी कि तीन हर्फ वाला फेल ही है ये, इसके अंदर कोई इजाफा नहीं है। अब उसके बाद ये फेल सही है या गैर सही है? गैर सही। गैर सही। क्यों गैर सही है? वाव हर्फ इल्लत वाव यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, इस वजह से ये गैर सही फेल है। अब ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये लिखा मैंने क़वला, काफ वाव और लाम, लेकिन कुरान में इस तरीके से नहीं है। कुरान में है क़ाला। कुरान में ये फेल है क़ाला।
قاف کے بعد الف ہے اور اس کے بعد لام ہے. تو یہ فعل چاہے واو آئے چاہے الف آئے تو یہ فعل غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں آئے گا, غیر صحیح فعل کی لسٹ کے اندر آئے گا یہ, چاہے واو آ جائے چاہے الف آ جائے. اب غیر صحیح فعل کیا ہے؟ جیسا کہ فعل کے بارے میں ہم نے دیکھے شروعات سے بھی, ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, ناہیہ ہے, پھر اس کے اندر ثلاثی مجرد ہے اور ثلاثی مزید بھی ہے, پھر رباعی مجرد, یہ ہم نے دیکھے حرف کے تعداد کے اعتبار سے ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد یہ دو فعل ہے, اور ثلاثی مجرد کے اندر ایک ہے ثلاثی مزید بھی, یعنی کہ اس کے اندر 3 حرف کے اندر کچھ اضافہ, وہ ہے ثلاثی مزید بھی. اور حرف علت اور حرف صحیح کے اعتبار سے ہم نے دیکھے کہ حرف افعال جو ہے فعل ہے وہ فعل صحیح ہے اور غیر صحیح ہے. تو یہ جو غیر صحیح فعل سب سے پہلے بولیں گے کس کو؟ جیسا کہ ہمارے پاس 3 حرف سے کسی بھی فعل کی شروعات ہوتی تو وہ 3 حرف, پہلا ہم نے نام دیے فا کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ, تو یہ 3 حرف سے شروعات ہو رہی. یہ 3 حرف کے اوپر یعنی کہ یہ 3 کلموں کے اوپر کوئی بھی 3 حرف کا مادہ جو مصدر کے اندر سے نکال کے وہ 3 حروف سے, وہ 3 لیٹر سے جو فعل بنایا جا رہا, وہ 3 لیٹرز کو, وہ 3 حروف کو عربی میں گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مادہ, اور انگلش میں اس کو بولیں گے روٹ لیٹرز. تو وہ جو مادہ ہے, جیسا ہمارے پاس فعل ہے نصرہ, نصرہ فعل ہے تو اس کے اندر 3 حرف سے وہ فعل بنا ہوا ہے, نون, صاد اور را. یہ نون, صاد اور را یہ جو 3 حروف ہے اس کو بولیں گے مادہ, کہ یہ مادے سے یہ فعل تیار ہوا, اور یہ 3 حرف کو انگلش میں بولیں گے روٹ لیٹرز. یہی 3 روٹ لیٹرز کے ذریعے سے وہ فعل تیار ہوا. تو اب یہ جو 3 حرف ہے, اگر اس میں سے کوئی بھی حرف اگر حرف علت آ جائے, الف, واو اور یا, یہ 3 حرف یعنی کہ مادے کے 3 حروف میں اگر حرف علت آ جائے کوئی بھی, الف, واو یا, تو اس فعل کو کہیں گے غیر صحیح فعل. ثلاثی مزید بھی کہ ہم نے ایک مرتبہ سانچے لکھے تھے, آج آپ صرف غیر صحیح فعل کے ٹائپس لکھ لیجئے بس, کہ کتنے قسم کے غیر صحیح فعل رہتے. غیر صحیح افعال یعنی کہ وہ ایسے افعال جن کے مادے میں حرف علت الف, واو یا آ جائے تو ان کو بولیں گے غیر صحیح فعل, غیر صحیح افعال. اور غیر صحیح افعال کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں. پہلا ہے مثال, دوسرا ہے اجوف, تیسرا ہے ناقص, چوتھا ہے مفروق, پانچواں ہے مقرون, چھٹا ہے محموز, ساتواں ہے مضاعف. مثال, اجوف, ناقص, مفروق, مقرون, محموز, مضاعف. یہ نام آپ لکھ کے رکھنا ہے, یہ نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے. جب ہمارا ٹاپک آئے گا پڑھنے کا تو اس ٹائم پہ ہم ان تمام کو تفصیل سے پڑھنے والے ہیں.
یہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو بس صرف لکھ کے رکھیے اور اس کی قسم کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے. جیسا ہمارے پاس 3 کلمے ہیں, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. مثال کہتے ہیں جس کے فا کلمے کے اوپر حرف علت آ جائے, واو یا یہ فا کلمہ ہے, یا عین کلمہ, یہ لام کلمہ. تو فا کلمے پہ اگر واو یا آ جائے تو اس کو بولیں گے مثال. اجوب بولیں گے عین کلمے پہ واو یا آ جائے. ناقص کہیں گے لام کلمے پہ واو یا آ جائے. مفروق جس میں 2 جگہ حرف علت آتی, ایک فا کلمے پہ اور دوسرا لام کلمے پہ. اس کے بعد 5واں ہے مقرون. مقرون کے اندر بھی 2 حرف علت آتے, لام کلمہ, عین کلمہ اور لام کلمہ پہ. محموز جس کے مادے کے حروف میں حمزہ آ جائے, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ, کہیں بھی آ جائے اس کو بولیں گے محموز. مضاعف جس میں ایک جیسے 2 حرف آ جائے, فا کلمہ چھوڑ کے عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے 2 حرف آ جائے تو اس کو بولیں گے مضاعف. یہ آپ خالی لسٹ آپ کے پاس لکھ کے رکھیے, اور آگے جب ہمارا ٹاپک آئے گا انشاءاللہ ہم اس وقت میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھنے والے ہیں. تو غیر صحیح فعل کی, غیر صحیح افعال کی 7 قسمیں ہیں. مثال اجوف, ناقص, مفروق, مقرون, محموز اور مضاعف. اس کو وہ عربی میں بولیں گے گرامر کی زبان میں 7 اقسام. 7 اقسام یعنی کہ 7 قسمیں. ہفت کہتے ہیں 7 کو, فارسی کا لفظ ہے ہفتہ جو ہم بولتے ہیں. ہاں, یک شنبہ, 2 شنبہ, 3 شنبہ, 4 شنبہ, 5 شنبہ. تو یہ ہے فارسی کا 7 اقسام. 7 قسمیں ہیں غیر صحیح افعال کی. تو ہم واپس چلیں گے. قولا, تو یہ اصل میں ہے قولا, قرآن میں استعمال ہوا قولا. تو یہ قولا سے قولا کیسا تبدیل ہوا؟ یہ غیر صحیح فعل واو ہے, واو سے الف میں کیسا تبدیل ہوا, اسی کو ہم کو پڑھنا ہے. آگے کلاس میں انشاءاللہ ہم جو تعلیلات کا ہمارا ٹاپک چالو ہوگا, جب ہمارا غیر صحیح افعال پڑھنا ہم شروع کریں گے, اس وقت میں یہ بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو قوالا ہے تو اس کے اندر فا کلمہ قاف ہے, اور عین کلمہ واو ہے, اور لام کلمہ لام ہے. تو یہ 7 قسموں میں سے کون سی قسم کا فعل ہوا یہ غیر صحیح کی؟ جس کے عین کلمے پہ حرف علت واو یا آ جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اجوف. اجوب. تو یہ ہے اجوب. تو قوالا پھر فعل ہو گیا, ہم نے پہچان لیے. اب قوالا سے تبدیل ہوا قولا. تو قالا غیر صحیح فعل ہے. قالا کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا. اس کے بعد ہے قابلن. قابلن, اگر قابلن کو آپ دیکھیں گے, غور کریں گے, یہ ایک اسم ہے, اور اسم کے اندر یہ کون سا اسم ہے؟ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ نکیرہ ہے. نکیرہ میں اسم الفاعل یا اسم المفعول میں سے کوئی ہے کیا؟ ہاں, اسم الفاعل ہوتا. اسم الفاعل یعنی کہ فاعل, کرنے والا. فاعلن کرنے والا, قابلن کہنے والا. کہنے والا. تو یہ بھی اجوف ہے, وہی 3 حرف کے مادے سے بنا. یہ بھی تبدیل ہوا قابلن سے قائل. قائلن.
اب واو جا کے حمزہ کیوں آیا، یہ بھی ہم تعلیلات میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہی ہے غیر صحیح افعال کی اہمیت. قال قائل، کہا کہنے والے نے. کہنے والے نے. یہ قائل دو زبر حالت رفع، دو پیش ہے، حالت رفع نشانی ہے فاعل کی، کرنے والے کی. اور یہ جو فعل ہے یہ 3 زبر والا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اس کا یہ فعل ہو گیا اور اس کا فاعل حالت رفع میں قائل، کہنے والا. کہا کہنے والے نے. منہم، من حرف جر ہے اور ہم ضمیر ہے. ضمیر ہے. متصل ضمیر جو ضمیر ہے، حرف مضاف جر کے ساتھ مجرور لگ جائی، بنتا ہے. ہاں حالت جر میں ہے. یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا. وہ مرکب کا نام ہے مرکب جاری، مرکب مرکب جاری. قال قائل منہم، منہم یعنی کہ ان میں سے، ان میں سے. قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے ان میں سے. کم، کم جیسا کہ میں نے بتایا یہ اس میں استفہام ہے. کم یعنی کہ کتنا، ہاؤ مینی، کتنا، تعداد پوچھنے کے لیے کتنا. لبستم، لبستم ہم نے پہچانے فعل ہے. تو اب یہ بتائیے کہ یہ فعل کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، ناہیہ ہے؟ ماضی. ماضی ہے. اس کی پہچان کیا ہے فعل ماضی کی؟ تم. لام کلمے کے اوپر جزم ہے. لام کلمے پہ جزم اور اس کے بعد اس کا انڈیکیٹر یعنی کہ تا، تما، تم، یہ آ گیا تم. اب بتائیے یہ فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم. معلوم ہے. اور اس کے بعد ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید کی ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ہے. صحیح فعل میں سے ہے یا غیر صحیح فعل میں سے؟ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ ان جو روٹ لیٹرز ہے لام، با اور تا، یہ تینوں بھی صحیح حرف ہے. اس کے اندر حرف علت نہیں ہے تو یہ بھی صحیح ہو گیا. اب لاسٹ میں ہم کو پہچاننا ہے صیغہ کون سا ہے. لبستم، حاضر جمع مذکر. حاضر جمع مذکر. لبستم یعنی کہ تم سب ٹھہرے. لبستم تم سب ٹھہرے. کم لبستم تم سب کتنا ٹھہرے. تم سب کتنا ٹھہرے. قالو پھر سے آیا فعل، ماضی ہے، جمع جمع مذکر معلوم ہے، غائب ہے. صحیح ہے، معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معلوم ہے. معلوم ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید کی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے. غیر صحیح کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم کا فعل ہے؟ اجوف ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں حرف علت آیا عین کلمے میں. تو یہ ہو گیا فعل. اب صیغہ کون سا ہے؟ جمع غائب مذکر. قالو معنی کیا ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا. ان سب نے کہا. ان سب نے کہا. پھر آیا لبسنا، فعل ہے، ثلاثی مجرد ٹھہرے. پھر سے ماضی ہے، معلوم ہے، ثلاثی مجرد ہے، جمع متکلم ہے. صحیح فعل ہے. اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. جمع متکلم کا صیغہ ہے. لبسنا ہم سب ٹھہرے. قالو لبسنا انہوں نے کہا ہم سب ٹھہرے. یومن ایک دن. یومن ایک دن. یہ اسم ہے، نکیرہ ہے اور حالت نصب میں ہے. یومن. اچھا یومن جو اسم ہے نکیرہ والا ہے، 2 زبر ہے، تو یومن یہ اسم کون سی کیٹیگری میں آتا؟ یہ اسم ظرف میں آتا، اسم الفاعل میں آتا کہ اسم المفعول میں آتا؟ زماں میں آتا ہے، ظرف زماں. یہ جگہ بتا رہا کہ وقت بتا رہا؟
बता वक्त बता रहा है। तो ये इसम हो गया, इसमें ज़र्फ दो किस्म के होते हैं, एक जगह बताता और एक वक्त बताता। तो ये जो यौमन है यानी कि दिन, तो ये बता रहा वक्त, जगह नहीं बता रहा, तो ये वक्त बता रहा। तो वक्त बता रहा तो ज़र्फ़े ज़मान। और अगर कोई इसम ऐसा है, कोई ज़र्फ इसम ऐसा है जो वक्त, क्या बोले, जगह जो बताएगा। हाँ, ऐसा इसमें ज़र्फ जो जगह बताए उसको क्या बोलेंगे? ज़र्फ़े मकान। ज़र्फ़े मकान जगह बताता, ज़र्फ़े ज़मान वक्त बताता। तो ये यौमन जो है ये वक्त बता रहा, एक दिन, तो ये हो गया ज़र्फ़े ज़मान। उसके बाद है औ। अब ये औ जो है हमने पढ़े हर्फ़े अत्फ़। हर्फ़े अत्फ़ 3 है, वाव, सुम्मा और फा। उसके अंदर एक चौथा ऐड करिए औ, ये भी एक हर्फ़े अत्फ़ है, या, इसके मायने है या। और या हर्फ़े अत्फ़। बाज़ा यौमिन, जैसा हमने पहचाने कि ये भी एक इसम है, और बाज़ा एक ज़र्फ है। यौमिन फिर से आया, यौमिन हालत जर में, ये भी एक इसमें ज़र्फ है और हालत जर में है। बाज़ा यौमिन, ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब इज़ाफ़ी। बाज़ा यौमिन, दिन का कुछ, इसका लफ्जी मायने है दिन का कुछ, फिर उसको बोलेंगे दिन का कुछ हिस्सा। यौमन औ बाज़ा यौमिन, उन्होंने कहा हम सब ठहरे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो ये है पूरी आयत। तो यहाँ तक की जो आयत है, क़ाला क़ाइलुन मिनहुम कम लबिस्तुम, ये फेल हो गया, ये इसका फाइल हो गया, मिनहुम मुताल्लिक़ फेल हो गया। कम लबिस्तुम ये सवाल हो गया, ये भी जुमला फेलिया है, और ये इसका फेल है, इसके अंदर फाइल अंतुम है, और कम इसका मफूल हो गया। अब इसके बाद वाला ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ा यौमिन। अब यहाँ हमको देखना है कि फेल, फाइल और मफूल। क़ालू उन्होंने कहा, ये एक फेल है, इसका फाइल है हम, उन्होंने कहा। फिर से आया फेल, लबिस्ना, लबिस्ना फेल हो गया, इसका फाइल ये है नहनु। क़ालू का फाइल है हम, और लबिस्ना का फाइल है नहनु, यानी कि हम सब ठहरे। ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया। अब इसका मफूल ढूंढना है। मफूल कहाँ है? यौमन। ये हालत नसब में आया, तो ये हो गया मफूल। उसके बाद में फिर बाज़ा हालत नसब में आया, तो ये भी हो गया मफूल। फेल, फाइल, मफूल अव्वल, मफूल सानी, यानी कि 2 मफूल हो गए। ठीक है, 3 और कोई मफूल है क्या इसमें? यौमिन, ये दोनों तो एक मुरक्कब बन गया ना, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी पूरा का पूरा बन के जो है मफूल हो गया। तो ये पहला मफूल है, ये दूसरा मफूल है। तो ये 2 मफूल पहचान लिए हमने, कंफर्म है ये। और कोई मफूल है इसमें? कब नहीं नहीं हो गया। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ा यौम। नहीं हाँ, कोई मफूल नहीं है, 2 मफूल हमको मिल गए। अब मफूल हमारे पास 5 किस्म के हैं, वो कौन से है? मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल माअहू, मफूल लहू, मफूल माअहू। ये 5 किस्म के मफूल है। अब ये 5 किस्म के मफूल में से ये कौन सा मफूल है? मफूल बिही है, या मफूल लहू है, या मफूल मुतलक है, या मफूल माअहू है? कौन सा है? मुतलक है। मफूल मुतलक है।
तो कैसा पहचाने आपने मफूल मुतलक है? का क्वेश्चन है रहता ना। नहीं है सर, मतलब नहीं है सर, मतलब कैसा कैसा ठहरे है क्या यहाँ पे? तादाद बताता है ना। तादाद है ना, कितना ठहरे? नहीं, नहीं। ये ज़र्फ़ मफ़ऊल माहू है सर। मफूल माहू माहू। पहचाने कैसा आपने मफूल माहू है? ज़र्फ़ है। देखिए मफूल मुतलक की पहचान क्या है? मफूल मुतलक यानी कि ऐसा आपने जो बताए, आपने जो सोचे वो बहुत अच्छा सोचे कि तादाद बताई जा रही, ठीक है, अदद बताया जा रहा, तो यहाँ पे एक बार ऐसा नहीं आया, 2 बार 70 मर्तबा ऐसा नहीं आया। और अगर वैसा मफूल आया भी तो मफूल मुतलक की पहचान ये है कि जैसा फेल होता मस्दर उसी बनता है। फेल का मस्दर बनता, सॉरी ये मस्दर इस्तेमाल होता, फिर वो बनता मफूल मुतलक, चाहे वो मुतलक। तादाद बताए, चाहे वो नोयत बताए, चाहे वो कैफियत बताए, मफूल यहाँ मुतलक की पहचान है वो। और मफूल बिही की पहचान है जिस पर काम हुआ, उसके बाद है फिर मफूल लहू, यानी कि किस चीज के लिए, मतलब क्यों काम हुआ वो। सबब बताए। फिर मफूल माहू किसके साथ काम हुआ, और ये उसकी फील पहचान है है। फाइल आता, ही है सर। उसके बाद वाव आता हरफ आत, और फिर दूसरा जो फाइल आता या दूसरा जो इस्म आता पूरा वो हालत नसब में आता, वो मफूल माहू की पहचान। ही है ज़र्फ़ फी ही ज़मान है ज़र्फ़ आपका मकान मतलब, उसमें मफ़ऊल ये ही है। ज़र्फ़ मफूल ज़मान है, मकान ज़माना बताया जाता है सर। मफ़ूल फी ही है। जमाना वक्त जी जी। और जगह बताने ज़माना वाला मफूल होता मफूल फीही। ही। मफूल फीही, मफूल फीही ऐसा मफूल है जो वक्त और जगह बताता, और उसकी पहचान है हालत नसब। और हालत नसब में जब आता तो वाहिद इस्म बन के आता, जो ज़र्फ है, ज़र्फ ज़मा या ज़र्फ मकान, वाहिद जब रहता तो वो हालत नसब में आता। और जब मुरक्कब बन के आता, यानी कि मुरक्कब इजाफी जब बन के आता, तो वहां पे जो ज़र्फ ज़मान या ज़र्फ मकान है वो मुज़ाफ इलैह बन जाता, और उसके पहले जो आता वो अलग इस्म आ जाता, तो बाज़ा आ जाता या फिर कुल्ला आ जाता। तो ये एक मफूल है मफूल फीही, और ये दूसरा भी है मफूल फीही। क़ालू लबिसना यौमन औ बाज़ा यौमिन, उन्होंने कहा हम सब ठहरे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो ये फेल हो गया, हम उसका फाइल हो गया। फिर उसके बाद लबिसना फेल है, नहनु फाइल है, और यौमन मफूल है, औ बाज़ा यौमिन ये भी मफूल है। लेकिन मफूल की 5 किस्मों में से ये मफूल फीही है, क्योंकि ये जगह और वक्त बता रहा। ठीक, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। नहीं सर, आयतों की प्रैक्टिस हो गई तो इंशाल्लाह वो समझ जो जाएंगे अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट अगर ले सकते थे ना सर, जो आपने ग्रामर एनालिसिस किया है जी उसका स्क्रीनशॉट, आपने जो ग्रामेटिकली एनालिसिस किया है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए था सर। नहीं, इसमें कहाँ उसका एनालिसिस करे हमने, खाली बस मैंने कहीं कहीं पे कुछ लिख दिया, जुबानी तो हुआ ज्यादातर। अब आप ये सूरह कहफ की आयत है, आप उसको निकालिए और आप अपनी नोटबुक में लिखिए, आप उसको फिर इजरा करिए, इंशाल्लाह तमाम चीजें समझ में आ जाएगी। सर एक बार आप बोले बाज़ा यौमिन मुरक्कब जी, जारी है, फिर और इजाफी है। एक बार बोले मुरक्कब इजाफी है। नहीं, मैं ये गलती से बोल दिया होगा, माफी चाहता हूँ। ये असल में मुरक्कब इजाफी है, वो बोलने बोलने में हो सकता मुरक्कब जारी मेरी जुबान से निकल गया होगा गलती से, तो ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब बकरा की आयत है ना सर? बोलते ना सर को नहीं, जी कहफ क्या है? सर, मुज़ाफ़ इलैह मारिफा करना। क्या बोल रही है? हाँ, बोलते क्या वो? नहीं नहीं नहीं, मुरक्कब ज़र्फ़ी नहीं बोलते, मुरक्कब इजाफी बोलते। अब नया नया कुछ भी निकालो।
पहले से ये नामा बहुत हो गए अपने को, इजाफी, तौसीफी, मफूल मुतलक, वो ये सब बहुत हो गए। नया कुछ भी मत निकालो प्लीज। अतफ को अच्छी बड़े थे बल्कि पूछ रहे सर। हाँ सर अतफ को जी। अच्छी बड़े थे ना, बोला कि ज़र्फ है तो ज़र्फ ही बोलते हाँ, हैं। जैसा नांदेड़ को नांदेड़ी बोलते हैं ना, नांदेड़ वाले को नांदेड़ी बोलते हैं, हैदराबाद वाले को हैदराबादी बोलते हैं, तो आपको अच्छी बोल दिया। सर बाद मुजाफ योमिन मुजाफिल, मुजाफिल मारफा होता है ना, यहाँ तो नकरा है। नहीं नहीं, मुजाफिल मारिफा नहीं होता, कभी मारिफा होता और कभी नकीरा भी होता। जी, सर, शुक्रिया। किताबु जैदिन, किताबु, अगर जैद जो है तो मारिफा इसमें है क्योंकि वो अलम है, रखा हुआ नाम है, तो मारिफा हो गया। किताबु वलदिन यानी कि किसी लड़के की किताब, तो वलदिन नकीरा हो गया, तो दोनों भी आ सकते। जी सर, शुक्रिया। तो दोनों मफूल फी हुआ सर। दोनों भी मफूल फी ही होगा क्योंकि दोनों भी वक्त बता रहे। जी जी, तो रुकेंगे आज यहाँ पे। जो आज आप लोगों का ये होमवर्क है, सर ने जो सेकंड स्लाइड आपको दिए और जो कल पीडीएफ भेजा गया है, उसके अंदर ये पीडीएफ भी है, ये पेज है, उसकी आयतों को आप इजरा करेंगे आप अपने तौर पे, चाहे आप जुबानी कीजिए चाहे आप लिख के करिए। कल आपको वो क्लास में बताना है इंशाल्लाह, ठीक है। कौन सा स्लाइड बोल रहे सर? जो आज हमने एक स्लाइड, जो स्क्रीनशॉट आज जो लिए, 2 पेजेस थे, पहले एक पेज पे एक बहुत सारी आयतें थे जिसका शुरुआत में हमने देखे कि मफूल कौन सा है पहचाने। फिर दूसरी जो स्लाइड थी, 4 स्लाइड, हाँ, तो नहीं वो इजा वगैरह नहीं, वो तो कल और डबल से उसको पढ़ने वाले हैं। आयतें जो हम इजरा कर रहे थे, जिन आयतों का इजरा किए थे, पेज नंबर 274 है पीडीएफ में। हाँ सर एक बार फिर उसको डाल दीजिए। हाँ, ये जो नहीं, ये नहीं, ये लिए आज ज़करुल्लाह कसीरन, ये आयत है, इसका भी हमने देखे, ये मफूल मुतलक है। इसके पीछे जैसा कल मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, तो उसके पीछे एक फेल है जो हज़फ हुआ है, तो इसके भी पीछे एक फेल है हज़फ किया हुआ, ज़करुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो वो आ गया मफूल मुतलक। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो आयतें हैं, ये दूसरा पेज, इन आयतों को, ये आयतें कल आपको होमवर्क रहेगा, ये एक पेज जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ नोट्स के अंदर भी ये मौजूद है। हाँ, ये पेज नंबर 282, थोड़ा आगे पीछे हो सकता पेज नंबर, लेकिन ये आसपास इसके। जी जी, चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी बोलिए।